ستارے ان کے قدموں میں نچھاور چاند کرتا ہے، ستارے ان کے قدموں میں نچھاور چاند کرتا ہے، فلک کا دل بھی آیا ہے، میرے مہمان آئے ہی۔ مسرت ان کے آنے کی یہ کیسی روح فضا ہے، مسرت ان کے آنے کی یہ کیسی روح فضا ہے، میرا دل گدگدایا ہے، میرے مہمان آئے ہی۔ وقت ہوا چاہتا ہے آج کے مہمان خصوصی صدر محفل عزت مآب پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اوڑی جناب مشتاق احمد سوپری صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب پرنسپل صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ عزت مآب برادر محترم شفیق صاحب، ہیڈ ماسٹر بوائز مڈل اسکول، برادرم جہانگیر صاحب، ان کے ساتھ جو دیگر اساتذہ کرام ہیں، یہاں کے معززین، عزیز طلباء و طالبات، میرے ساتھ آئے ہوئے جو میرے رفقا ہے، ساتھی ہے، سب کو میرا سلام۔ آج جمعہ کا وقت ہے، ٹائم نماز کا بھی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے۔ مختصری آپ سے بات کروں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے 2-4 مہینے پہلے پروگرام بنایا تھا چورنڈا آنے کا، لیکن بدقسمتی کے میرے پاؤں میں تھوڑی تکلیف ہو گئی تو میں چل پھر نہیں سکا، اس لیے مجھے 3 مہینے یہ پروگرام مؤخر کرنا پڑا۔ اس دوران میں اکثر بیشتر اس اسکول کی ایکٹیویٹیز، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے بچوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہا۔ اعجاز صاحب ہمارے زون کے نہایت ہی فعال استاد ہیں اور استادوں کے بھی یہاں پر صدر ہے، تحصیل پریزیڈنٹ ہے ٹیچرز فورم کے۔ انہوں نے اس اسکول کو نہ صرف تحصیل اوڑی میں بلکہ اوڑی سب ڈویژن بارہمولہ بلکہ کشمیر میں بھی متعارف کرایا ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ بار بار اس اسکول کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہاں کے بچوں کی، یہاں کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو میں نے ان سے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم دورہ کرنا چاہتے ہیں چورنڈا کا، وہاں اپنے بچوں سے، اپنے استادوں سے کبھی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس دور دراز علاقے میں دیکھیں کہ بچوں کو، ان کے والدین کو، استادوں کو کتنی مشکلات ہیں اس تعلیم کے سفر کو جاری رکھنے میں۔ آج میں نے خود بھی دیکھا، جب میں آ رہا تھا مجھے تھوڑی بہت دقت ہوتی ہے چلنے میں، ابھی بھی پیر میں مجھے محسوس ہو رہا تھا وہاں سے آتے ہوئے کہ یہاں کے بچوں کو جو ہمارے پاس اوڑی آتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے آنے جانے میں بھی اور مختلف چیزوں میں بھی، اور یہاں کے والدین بھی کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کرے جو امن چل رہا ہے یہ آئندہ بھی چلتا رہے اور آپ کو سکون سے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کا موقع ملے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی جب میں اس اسکول میں، جب میں اوڑی آیا تو اعجاز صاحب اگر معاف نہیں کریں گے، میرے اساتذہ جو میرے ساتھ ہیں، میرے دوست شفیق صاحب یا وریندر جی یا غلام نبی سر، کونسر سر جو میرے ساتھ ہیں، تو میں نے قبرستان کی خاموشی دیکھی اوڑی میں۔ بالکل کسی جگہ کوئی حرکت کسی سکول میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ میں کووڈ میں نے جوائن کیا تھا، پہلے ہی ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی کووڈ کے حوالے سے، کسی جگہ کوئی فنکشن نہیں، کسی جگہ کچھ نہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے کام کیا اسی کووڈ میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ ہمارا بھی رول بنتا ہے اس کووڈ میں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک کچھ بینر بنائے اور بازار میں ایک جلوس نکالا کووڈ کے اویئرنیس کے حوالے سے۔ تو پھر شروعات ہو گئی، پھر ہم کوئی آن لائن، کوئی اس طرح مختلف پروگرام کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ ہمارا مطلب جو فٹ انڈیا کا یا جو MHRD منسٹری کا جو پروگرام لیول ہے، اس میں ہم نے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اوڑی کو پہلی سطح پر ڈسٹرکٹ میں لایا۔
मुझे बहुत खुशी है कि हमारे डायरेक्टर तसदुक हुसैन मीर साहब, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब नेशनल अवार्डी जनाब गुलाम मोहम्मद लोन साहब और यहाँ के जोनल हेड जो है उन्होंने ये एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से एक मुहिम चलाने का फैसला किया है। इससे क्या हुआ कि हमें गांव-गांव में घरों में जाने का मौका मिला। हमने बच्चों के साथ उनके वालिदैन के साथ एक पब्लिक रिलेशंस का एक नया सिलसिला शुरू किया गया। इस दौरान हमें न सिर्फ बच्चों की मुश्किलात, वालिदैन की मुश्किलात, मुख्तलिफ चीज़ों का अंदाज़ा हुआ, बल्कि लोगों के करीब रहकर हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का भी मौका मिला। इसी हवाले से मैं अपने इदारे की तरफ से इस दूर दराज एरिया में अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब लोन साहब की हिदायत पर आया हूँ ये रिक्वेस्ट करने के लिए आपसे कि आपके जो बच्चे इस सरहद के इस लास्ट हिस्से पर हैं, जो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास और भी आगे जाने के रास्ते हैं। जब वो यहाँ से निकलेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे, जब वो हमारे पास से निकलेंगे तो वो बारामूला पहुँच जाएंगे, जब वो बारामूला पहुँच जाएंगे तो वहाँ से वो श्रीनगर पहुँच जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला श्रीनगर से उनके लिए न जाने कहाँ कहाँ के रास्ते खुल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुस्तकबिल करीब में मैं बहुत से IAS और KAS अफसरों को देख रहा हूँ। जिस तरह से हमारे शफीक साहब, जहांगीर साहब या बाकी टीचर हजरात काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब इस गांव में भी कई सूरज चमकेंगी। मैं अपनी तरफ से जब तक मैं उड़ी में हूँ, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके साथ, आपके स्कूल के साथ मुकम्मल तौर पर हमारा ताउन रहेगा। शफीक साहब, मैं कोशिश करूँगा कि हमारी लाइब्रेरी में भी जो भी एक्स्ट्रा किताबें होंगी तो वो मैं आपकी लाइब्रेरी को वो प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आपके गांव में भी एक अच्छी खासी हो। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपकी लेबॉर्ट्रीज को भी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा सामान होता है, जो भी होगा हमारे पास हम इस सुकून को अडॉप्ट कर लेंगे। इस हवाले से आपको जो भी ताउन चाहिए हमारे हवाले से आप बॉयज़ हायर सेकेंडरी उड़ी में आइए और कोई भी चीज़ आप इंशाल्लाह ताला वहाँ से हासिल कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैं रास्ते में ही बात कर रहा था, शफीक साहब ने आपको कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला समग्रा को एक प्रपोजल दे रहा हूँ कि हमारे मिड डे मील स्कूल, मिडिल स्कूल जो होते हैं उनमें मिड डे मील चलता है। मेरी ये कोशिश होगी, मैं अपने डिपार्टमेंट को प्रपोजल दे रहा हूँ कि जो अपर रीच से, चरंडा से या आसपास के जो अपर रीच से जो बच्चे पैदल हमारे स्कूल में आते हैं, उनके लिए भी, हालांकि हायर सेकेंडरी स्कूल में मिड डे मील नहीं होता है, कोशिश करेंगे हम कि उन पर्टिकुलर चंद बच्चों के लिए जो दूर से आते हैं उनको हम मतलब मिड डे मील में शामिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो यहाँ से आपके बच्चे भूखे निकलते हैं वो दिन भर भूखे न रहें। और हम इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि उड़ी में मुस्तकबिल करीब में हम SDM साहब से मुतालबा करेंगे, उनके सामने ये प्रपोजल रखेंगे कि उड़ी में एक गर्ल्स और एक बॉयज़ हॉस्टल होना चाहिए, जहाँ से ये ऊपर से चाहे कॉलेज में चाहे हायर सेकेंडरीज में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको आने जाने में जो दिक्कत से बचने के लिए वहाँ पर क़याम करने का मौका मिले। इस सिलसिले में इंशाल्लाह ताला एजाज साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि टीचर्स की लेवल पर हम ये मुहिम एक स्टार्ट करेंगे कि जो दूर दराज के बच्चे हैं जो हमारे कस्बों में पढ़ने के लिए आते हैं उनको सहूलियत हो। बाकी जहाँ तक आप जानते हैं कि हमारे स्कूलों में, गर्ल्स हायर सेकेंडरीज में तमाम बच्चियों को बेटी अनमोल के तहत स्कॉलरशिप मिल रही है, वो स्कूलों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। इसी तरह बॉयज को पहाड़ी स्कॉलरशिप, ST स्कॉलरशिप, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप। इस साल मेरे स्कूल में 36 बच्चों को पहाड़ी के जुमरे में स्कॉलरशिप मिल रही है। इसमें वो सर्टिफिकेट की थोड़ी बहुत दिक्कत है। इंशाल्लाह उस हवाले से भी कोशिश चल रही है कि सारे बच्चे उस जुमरे में आ जाएं। हम बच्चों को हर तरह की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आगे जाए, लेकिन मेरी बुनियाद शफीक साहब है।
मेरी बुनियाद जहांगीर साहब है, मेरी बुनियाद आप गाँव वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों को सरकारी इदारों में भेजेंगे, इन सरकारी इदारों को मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारा सिस्टम मुस्तहकम होगा। ये सारा आप पर निर्भर है। सरकार आपको जितनी सुविधाएं दे रही है इस यूटी में, इस वक्त मरकजी सरकार, हमारे स्कूल में इंशाअल्लाह ताला प्रपोजल है मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल लैब, उसका एक जाल फैलाया गया है। एक अटल लैब आ रही है इस साल हमारे स्कूल में भी, जहां पर हमारे बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से नई तरबियत दी जा रही है, नए तजुर्बे कराए जा रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह करीब मुस्तकबिल करीब में कायम। कंप्यूटर, आईसी, आईटी, या जिस तरह आपको बोला इसने, ये शफीक साहब ने, कि हमारे स्कूल में आपको घर घर हम एक डॉक्टर, छोटा मोटा डॉक्टर हम आपको घर में देते हैं। आपको इंजेक्शन करने के लिए, आपको मामूली प्रेशर चेक करने के लिए, आपको टेम्परेचर चेक करने के लिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं जाना चाहिए, जा सकते हैं। हम अपने स्कूल में अपने बच्चों को ही अब सिखाते हैं ये काम। इसके लिए हमारे पास एक क्लास ऑलरेडी शुरू हुआ है पिछले 3 साल से। न जाने हमने कितने कंपाउंडर और मेडिकल असिस्टेंट पिछले 3 साल में पैदा किए हैं। वो घर जाकर खुद आप प्रेशर भी चेक करते हैं, माँ का, पूरी माँ का, बाप का या किसी और रिश्तेदार का इंजेक्शन भी लगाते हैं, या छोटी मोटी जो चीजें हैं वो हम उनको सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इसको शफीक साहब को बताएंगे, कभी ये अपने बच्चों को 8th क्लास के बच्चों को एक ग्रुप में लाएंगे हमारे स्कूल में। 1-2 दिन हम इनका भी उस हेल्थ लैब में क्लास कराएंगे, और उसी के साथ जो हमने आर्ट गैलरी बनाई है उसका भी इनको थोड़ा मुआयना कराएंगे। इनको पता चलेगा कि आइंदा हमें क्या करना है। मुझे डायरेक्शन ऑफिस से मतलब 5-6 महीने पहले उन्होंने बताया था, वहाँ पर जो OSD कल्चर है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर हमारा कुछ प्रोग्राम है सर्वे का, हम थोड़ा बहुत बात करना चाहते हैं बच्चों के साथ चोरंडा में। मैंने शफीक साहब के साथ ये शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने जारी साहब को बताया था कि वो आ रहे हैं शायद। इंशाअल्लाह ताला जब उनके साथ मैच पर प्रोग्राम हो जाएगा, आपको थोड़ा दिल बड़ा करना है। अब जब लोग आते हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम देना है, उससे आपको इंशाअल्लाह ताला फायदा ही फायदा हो जाएगा। तो वो भी श्रीनगर से प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके अलावा मैं कल बैठा था अचानक एक आर्ट ग्रुप के साथ, वो ये आर्टिस्ट पेंटिंग वेटिंग के ये कराते हैं वर्कशॉप। इंशाअल्लाह ताला मैं उनको इस स्कूल का नाम दे दूंगा, तो एक दिन वो यहाँ आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, बच्चों के साथ एक अच्छा सा एक दिन का वर्कशॉप करेंगे। तो इससे न सिर्फ बच्चों में शौक बढ़ जाएगा बल्कि आपको भी एक नया चीज मिलेगा करने के लिए कि किस तरह बच्चों के मतलब हुनर को डेवलप करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर भी आपको हमारी मदद की जरूरत हो, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ के पेरेंट्स से, चाहे सरकार का प्राइवेट प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है या हायर सेकेंडरी स्कूल है, कोशिश कीजिए अपने इन्हीं इदारों को मजबूत करने की। आपको क्या जरूरत है? देखो 3 साल से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, घरों में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, फीस तो वो लेते हैं, स्कूल तो जाते नहीं है, पढ़ाते तो कुछ नहीं है, लेकिन फीस भरते हैं, कहीं गाड़ी का भी फीस लेते हैं, स्कूल जब गए ही नहीं। तो इसमें ये चीज देखनी है आपको कि यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से हर एक चीज मुफ्त मिल रही है। मैं एक तरह से यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर जो हमारे आर्मर्ड फोर्सेस है जो यहाँ की इस सरहद की रखवाली करते हैं इस एरिया में, ये भी बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि आप लोग आगे बढ़ें। ये भी अपने तरीके से कोशिश करते हैं, आपको डिफरेंट तरीके से मदद करते हैं आगे बढ़ने में। हम इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं एज ए प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ऊड़ी, अगर उनका यहाँ कोई बैठा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है इनके ऑफिसर साहिबान से,
कम से कम टीचर्स को, जो हमारे टीचर चाहे उड़ी से चाहे किसी इलाके से, उनकी मूवमेंट के हवाले से उसमें थोड़ा बहुत ताउन हमारे साथ करें, ताकि बच्चों को, नई जनरेशन को फायदा मिले। हमारे स्कूल के इंशाल्लाह ताला जब नया सेशन शुरू होगा तो महीने में हम एक दिन जरूर यहाँ आएंगे। मेरे टीचर्स, लेडी टीचर्स जो हमारे, वो भी एक दिन हम आया करेंगे, इन बच्चों के साथ बैठा करेंगे, तो उसमें एक अलग तजुर्बा होगा। आप हमसे सीखेंगे, हम आपसे सीखेंगे, लेकिन उसमें यही आने जाने का थोड़ा मसला रहता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो ऑफिसर साहिबान हैं वो जहांगीर साहब उनके साथ पैचअप करके रखेंगे। हम इनको एडवांस में इतला दे देंगे कि कब वो प्रोग्राम बनेंगे, ये हमारे साथ ताउन करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी ही एक तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी। अगर यहाँ पर ये चीजें ना हो तो शायद कुछ मसाइल भी पैदा हो जाएंगे। बहरहाल जिस तरह से ये लोग भी चाहते हैं कि आपके एरिया में यहाँ पर तालीम आम हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि इस इलाके के बच्चे, मैं ये हंसते हुए फूल देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हमें सुन रहे हैं। इनको समझ कुछ आ रहा है ना आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जिस इत्मीनान के साथ यहाँ पर बैठे हैं उसके लिए मैं इनके सबका शुक्रगुजार हूँ और इनको प्यार देता हूँ। एक बात मैं यहाँ पर लास्ट में अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर डाइस पर अभी यास्मीना ये अभी स्केच कर रही थी, इंशाल्लाह ताला इसको मैं अपने स्कूल की तरफ से इसको इस साल स्कॉलरशिप दे दूंगा। तो उसके लिए मैं यहीं पर ये इनके शफीक साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी मुझे डिटेल और बैंक अकाउंट दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला देख लूंगा कितना उनसे हो सके। वो हम चाहते हैं कि आपके बच्चों की हौसला अफजाई हो, और मेरी ये ख्वाहिश है कि इस इलाके से तमाम के तमाम कोई बच्चा घर में ना रहे, सब के सब स्कूल में आने चाहिए। बहुत से बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं तो बाकी लोगों का भी मैं वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये मैसेज तमाम जगहों पर पहुंचाएंगे और सरकारी स्कूल को, इस निज़ाम को मुस्तकम करने में हमारी मदद करेंगे। बाकी मैं एक बार फिर यहाँ की विलेज जो कमेटी है, यहाँ के सरपंच, नंबरदार, जो बाकी लोग हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के स्कूल के टीचर्स का, शफीक साहब का, जहांगीर साहब का, उनके साथ रूप साहब, जो बाकी टीचर्स है, सबका नाम मुझे याद नहीं है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जो हमारी रखवाली के लिए, यहाँ इस इलाके में इस भारत की रखवाली के लिए लोग बैठे हैं, हमारी रखवाली कर रहे हैं, आपकी रखवाली कर रहे हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया यहाँ पर आप सबके साथ बात करने का। तो मैं अपने साथियों का भी कि ये इन मुश्किल हालात में, क्योंकि आने जाने में मुझे पर्सनली बहुत तकलीफ होती है थोड़ी बहुत चलने में, तो इन्होंने ये मेरा साथ दिया यहाँ आने में। गुलाम नबी सर का, वरिंदर जी का, यूनुस साहब का, शफीक साहब का, काउंसलर साहब का, एजाज साहब का, राजा जावेद साहब का, सबका मैं एक एक करके शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है जो रिश्ता हमने ये इस मिडिल स्कूल के साथ कायम किया, ये आगे भी बढ़ेगा और ये ताउन इंशाल्लाह ताला आगे चलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।